introduction, Khushi. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Rahman ji. So talking about today's trainer, Sneha Sukhadia, she is certified zone trainer in Junior Champion International India. NLP, Sneha Sukhadia is young, energetic, innovative HR professional. She has experience of over 6 years in the field of training and development. She has done various training programs on the topics such as time management, teamwork, team building, business etiquette, communication skills, and outbound training. She is working as a senior executive, training and development and management consultancy company called Academy of Advanced Management Practices and Leadership Excellence Power Limited. Apart from soft skill training, she has also teaches basics of accountancy not only to commerce students but also to the bank employees for the exams. She also has very good knowledge of computer skills in MS Excel, Word, Word, PowerPoint. She is also working as a member of NGO in Junior Champion International, where she delivers soft skill training for youth development and various schools for students. Her values are honesty, integrity, and adaptability. She believes that curiosity is the fuel for a car of learning. Her sessions are interactive, focused, with various games and activities. With this, I welcome you, ma'am, and thank you so much for giving your valuable time. Thank you, Khushi ji. Thank you, Rahman ji, for this introduction. And good afternoon to all. हम लोग शुरू करें उससे पहले I just wanted to ask tell something about the time. As sir have shared the video, જ્યારે સમયની વાત કરીએ ત્યારે સમય એક એવું પરિબળ છે કે જે કદાચ આપણને બધાને એક સરખી રીતે એફેક્ટ કરે છે. जब भी हम समय की बात करते हैं, what is the most common complaint? As we all know, we are a closed group here. We can always unmute our mic and we'll discuss everything. So I just request you all to unmute our mic and answer. What is the biggest our complaint with time? हमें सबसे ज्यादा क्या कंप्लेन रहता है? बहुत ओछो टाइम છે. बहुत ओछो टाइम છે. Sorry? टाइम कभी वापस नहीं आता. टाइम कभी वापस नहीं आता. ઘણો ઓછો ટાઈમ છે. ઘણી વખત આપણે એવું પણ સાંભળીએ છે ના આજે મારી પાસે ટાઈમ નથી. and the most common સમયની મારામારી છે જે we used to say કે આપણને નથી ફાવે એવું અથવા તો આપણે ઘણા બધા કામ એમ જ છોડી દઈએ છીએ કે જે કદાચ આપણે કરી શકતા હતા પણ સમયની મારામારીના લીધે નથી કરતા. So I just wanted to know what is time? How do we define time? આપણે એને અગર વ્યાખ્યા આપવી હોય તો શું આપી શકે? I hope everyone fine with the Gujarati also. Yeah. So સમયને વ્યાખ્યા આપવી હોય તો શું આપી શકાય? Okay, so time is priority. Then સમય એક એવી વસ્તુ છે જે કોઈ દિવસ પાછી નહીં આવે અને બધા પાસે ઇક્વલી હોય. બધા પાસે ઇક્વલી હોય ને કદી પાછી નહીં આવે. કરેક્ટ. પછી હજુ કોઈ? મોસ્ટ વેલ્યુએબલ થિંગ. મોસ્ટ વેલ્યુએબલ. ઓકે. સો આ બધી જે પણ આપણે વાત કરીએ છીએ ક્યાંક ને ક્યાંક સમયને ડિક્ટેટ કરે છે કે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે કહી શકીએ. બટ વોટ ઇઝ ટાઈમ? જ્યારે આપણે સમયની વાત કરીએ તો આપણા સૂર્યમંડળમાં જ્યારે પૃથ્વી પોતાનો એક આખો ચક્ર જ્યાંથી ઇલ્યુઝન ઓકે સો એક આખો ચક્ર જ્યાં પૂરો કર્યો ત્યાં આપણે એને એ સમય એ ગાળાને આપણે સમય કહીએ છીએ. એ સમયનો માપદંડ તરીકે આપણે એમ બોલીએ છીએ કે ઓકે આ મારી પાસે એક વર્ષનો સમય હતો અથવા તો છે. So similarly સવારથી લઈને સાંજ સુધી we generally define our day કે બે ઘટના વચ્ચેનો જે ગાળો છે or the space between two events can be defined as time. જ્યારે આપણે જીવન સાથે સરખાવીએ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે સમય એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપણા બર્થ સાથે શરૂ થાય ને આપણી ડેથ સાથે પૂરી. Madam interrupting, I am not comfortable in Gujarati. No problem sir. जब भी हम समय के बारे में बात करते हैं we can say that कि it start with the human birth and जब हमारी डेथ होती है उसके साथ वो खत्म होता है.
So this is the measurement of time, I guess. So when we say about time, सर ने जो अभी एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो में लास्ट में बोलते हैं, सर the time is changing. So can somebody tell me how the time is changing? Yes, रहमान जी. रिसेंटली अपने पास बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे चेंज हो रहा है। 2020 और 2021 के अंदर इतना फार डिफरेंस है कि पूछे मत। हमारे अगर वेडिंग इंडस्ट्री में अगर कहा जाए या ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कहा जाए, तो जहां हम 1-to-1 मिलके या फेस टू फेस ऑफलाइन मीटिंग करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ ज्यादा लोग कंफर्टेबल ऑनलाइन में है। तो दिस अ टाइम चेंज, लाइक अपग्रेड, खुद को अपग्रेड करना इज टोटली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें करना ही पड़ेगा। तो टाइम इज चेंजिंग। करेक्ट, टाइम इज चेंजिंग। जैसे कि हमने बात किया, द टाइम इज चेंजिंग कहाँ से कहाँ तक। जब हमारे दादा परदादा का टाइम था तभी भी अलग था, उसके बाद जब हमारा खुद का टाइम था, शायद 2 साल पहले का टाइम और अब का अभी का टाइम अगर कंपेयर करें, सो इट इज चेंजिंग ऑल्सो। तो जब भी हम बात करें, इट इज चेंजिंग फाइनेंशियली, इट इज सोसाइटी में चेंज आ रहा है, सबके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। जैसे रहमान सर ने कहा, हम लोग पहले फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अभी सब ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रेफर कर रहे हैं, तो आवर प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग, बट स्टिल आवर कंप्लेन इज द सेम, आई डोंट हैव टाइम, और मेरे पास समय नहीं है। सो विद दैट आई जस्ट वांटेड टू नो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारे पास सबसे ज्यादा अभी एप्लीकेशंस है जिससे हम बोलते हैं कि हमें टाइम मैनेज करना है, और हम सबसे ज्यादा अभी अलर्ट रखते हैं या फिर हमने कैलेंडर में रख दिया, सब कुछ करते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टिल वी फील कि हमारे पास टाइम नहीं है। शायद कई सारी चीजें हमें पहले जो करनी पड़ती थी अब नहीं भी करते, स्टिल वी फील वी डोंट हैव टाइम। व्हाई? आई मीन why does it happen कि हमारे पास हम कभी भी बात करें तो हमारे पास टाइम की कमी क्यों रहती है? ऐसा क्यों लगता है कि स्टिल वी डोंट हैव टाइम एंड देन वी फील के हमारे पास, जैसे रहमान जी ने कहा था कि हमारे सबके पास एक जैसा या एक जितना टाइम है, फिर भी वी फील आई डोंट हैव टाइम। If we have the same amount of time, same quantity of time, we should be able, अगर हमारे पास फिर भी कम पड़ रहा है तो it is our responsibility कि उसको अच्छी तरीके से हम यूज करें, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो रहा है कि हम लोग उसको यूज करने में गलती कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसको और कोई तरीके से करे या और कोई वे से करे या ना करे, तो काफी सारा टाइम बच सकता है। सो व्हेन वी से समथिंग अबाउट टाइम, इट इज इक्वल विद एवरीवन, सबके पास एक जितना है। इफ वी आस्क समबडी के तुम्हारे पास 24 से ज्यादा 25 घंटे है, तो वो नहीं हो सकता। आई मीन इट इज नॉट पॉसिबल। So we can't create more time. Only what we can do is to have the best usage of our time. जितना भी हमारे पास है उसका बेस्ट यूजेज हमें करना है। So जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया that we have a complaint that we don't have time. So I just wanted to know, why do we feel that we don't have time? I mean, what are those activities or what we are doing with our time कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम, ऐसा तो हम क्या करते हैं? One of the thing is time waste in doing some things which we are not supposed to do, if it's just for the sake of entertainment, not for productivity. करेक्ट। ऐसा हो सकता है कि कई सारी चीजें प्रोडक्टिव नहीं है फिर भी हम करते हैं, वी कॉल इट टाइम वेस्टर्स। जैसे कि अभी आपने बताया, टाइम वेस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? यूट्यूब हो सकता है, देन अपार्ट फ्रॉम देम व्हाट एल्स कैन बी आवर टाइम वेस्टर्स? ड्यू टू नो प्रॉपर प्लानिंग, ऑफ कोर्स प्लानिंग नहीं है तो भी टाइम वेस्ट होता है। तो बचाने के लिए पहले हमें ये चीज तो फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ हम टाइम गवा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं अगर वही एक हिसाब लगाएंगे तभी हम बचा पाएंगे। So I just wanted to know what are the areas in which we feel कि हमारा टाइम जा रहा है, maximum टाइम जा रहा है, because of which we feel कि हमें टाइम नहीं है।
mismanagement, okay. More of a screen time, entertainment, of course, excess of social media engagement, traveling, okay. So all these are time waster, gossips, the talks or the conversation which are not very productive, we can say that. So we all know what I mean, हम लोग कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो हम सबको पता है, चाय पे चर्चा, करेक्ट। हम सब ये भी जानते हैं कि ये सारी चीजें हैं या एक्टिविटीज है जहाँ पे मेरा टाइम ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से मैं और कोई काम नहीं कर पा रहा। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट कि जब भी हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज या काम के बारे में बात कर रहे हैं, हम कभी ना कभी एक काम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमें दूसरे काम को मना करने के लिए, आई मीन इट फोर्सेस अस टू से नो टू द अदर वर्क। मतलब कि अगर मैंने चूज किया है कि मुझे आज टीवी देखना है, तो आई एम डिसाइडिंग द टाइम फॉर माय टीवी एंड देन आई एम सेइंग नो टू सम अदर वर्क, और अदर दैट अदर वर्क कैन बी माय लर्निंग, कैन बी माय जॉब्स वर्क, कैन बी माय एंटरटेनमेंट, अदर एंटरटेनमेंट वर्क, या फिर घर का कुछ काम हो गया। तो हम आज ये बात करेंगे कि कैसे हम ये सारी चीजें एक साथ मैनेज कर पाए, क्योंकि all we have is the same time, we just need to prioritize and we need to balance the things के जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाए। तो जब भी हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू नो दैट आई मीन we all have known that कि ये सारे टाइम वेस्टर्स है। इसके अलावा टाइम वेस्टर्स के अलावा first I want all of you to write down the activities of your daily routine, जो routine में हम लोग काम करते हैं। I told you guys to have a pen and paper, just write down the list of activities जो हम लोग करते हैं। short में भी हो सकता है, long भी हो सकता है। You can write down in the chat box once you complete it. हमें एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करनी है पूरे दिन की एक पेपर पे। Are we all done? Work which are not important and work which are not important and urgent. Yes. All the activities which we are doing during the entire day. Likewise, if I go from 9:30 to 6:30, I am at office. What am I doing? Briefly, I can say that I spend so and so hour of time in training work, so and so amount of time in recruitment work. So what are the things which I focus the most in daily routine? Office work, okay. So I suppose सबने लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हुए traveling, okay. Completing urgent task near the deadlines, okay. ये सारी चीजें हैं। अभी ये पेपर को अभी थोड़ी देर के लिए आपको अपने पास ही रखना है, साइड में रख दीजिए। एंड उसके बाद अब जब हम समय के बारे में बात करते हैं, तो one more question I would ask you, I would like to ask you that is it okay कि अगर मुझे यहाँ से मतलब बड़ौदा से मुंबई जाना है, if I start my journey by car, तो मुझे कितने घंटे लगेंगे? What is the amount of time that I'll spend reaching Mumbai? 6 hours? Around 6 hours? 6 hours, yes. Okay, correct. So, okay, 6 hours. I need to drive for 6 hours, correct? So, yes. I just wanted to ask you, is it okay अगर मैं बड़ौदा से शुरू कर रही हूँ and I drive for 6 hours straight away from Baroda towards Ahmedabad, will I be reaching Mumbai at
आफ्टर 6 hours? यस डेफिनेटली, उसके बाद सॉरी, भी अटेंड, हाँ उसके बाद भी पहुंच सकते हैं ना, अगर आप टाइम लेकिन पे पहुंच। लेकिन मैं यहाँ से अहमदाबाद की तरफ जाऊं बड़ौदा से, तो मैं मुंबई कैसे हम्म, पहुंचूंगी? आपको यूटर्न मार के जाना पड़ेगा। हाँ, okay, I just wanted नॉट to ask you, पॉसिबल। is it okay if I go towards Ahmedabad for reaching Mumbai? नो, No, I mean not possible in 6 hours. नॉट Maybe पॉसिबल। अहमदाबाद जाके फिर घूम के वापस आऊं, वो अलग चीज है, फिर मैं 6 hours में नहीं पहुंचूंगी, मे बी इट विल टेक 10 hours or so. So whenever we decide कि हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, whenever we decide an activity कि जो हमें करना है, उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस हमें फाइनली क्या रिजल्ट्स चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर माय फाइनल आउटकम्स दैट आई वांट, कि जो मुझे चाहिए, कि जहां से आई एम गेटिंग सम दैट आई एम गेटिंग समथिंग के मुझे ये रिजल्ट चाहिए. अगर वो चीज मैं कर पा रही हूँ तो इट इज ओके. When it comes to long term goals, long term vision, long term values, it is very important to keep your activity towards that ultimate aim or the goal. When we say about time management, it is very important कि हम लोग हमारी final result को ध्यान में रखते हुए काम करें. If I say कि मुझे अहमदाबाद से मतलब बड़ौदा से मुंबई पहुंचना है, I need to drive towards Surat first and then I can reach Mumbai at least in 6 hours or 7 hours. So that is the case with the clock and the compass concept. If I wanted to achieve something, I need to work towards that direction. जैसे कि हम लोग हम में से कई सारे लोग ऐसा डिसाइड करते हैं एट द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कि मुझे वेट लूज करना है. मे बी फर्स्ट वीक में होता भी है, एक्सरसाइज भी होता है, रेगुलर डाइट भी होता है, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में उत्तरायण आता है, उसके बाद मैरिज सीजन शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सारा सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर वो रेजोल्यूशन ये साल का अगले साल का बन जाता है. So, ऐसा ना हो उसके लिए हमें कंटिन्यूअस अपने अल्टीमेट डायरेक्शन अल्टीमेट गोल को ध्यान में रखना पड़ता है. एंड विद रेफरेंस टू दैट, हम लोग में से कई लोग ऑलरेडी अवेयर है द मेट्रिक अबाउट द मेट्रिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, about prioritizing things as per their urgency and importance. So अभी जो हम लोगों ने लिखी एक्टिविटीज, वो ज्यादातर एक्टिविटीज कौन से क्वार्टर में फॉल करती है, उसके हिसाब से हम टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर बना सकते हैं. So I would request all of you to just mark your activities as Q1, Q2, Q3, Q4. Further we can discuss it more. लेकिन कहाँ पे क्या लिखना है उसके बारे में एक बार बता देती हूँ. Q1 is urgent and important, things which are very important and very urgent. You have to do it right now, just like you need to pay the electricity bill at the last date. It is very important and it is very urgent. When we say about the deadlines of the project, if I'm a student, I need to complete and submit the assignments, then it is urgent and important. If it is the deadline is of tomorrow. जब not urgent but important की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारी चीजें आती है, जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गया. द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, वी डोंट हैव टाइम, जो हम अपनी फैमिलीज को नहीं दे पाते. उसके बारे में अगर बात करें, फैमिली के साथ टाइम बिताने के बारे में बात करें, मे बी इट इज नॉट अर्जेंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुद के ग्रो और खुद के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जब एजुकेशन या कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है योर फर्दर स्टडीज मे नॉट बी अर्जेंट, मतलब ये साल में मुझे कोई कोर्स परस्यू करना नहीं करना, that may not be very urgent, but it is very important to have a continuous learning process. Progress. Sorry. Okay. continue ma'am. Okay. Q3 is for not important and urgent. कई सारी चीजें ऐसी होती है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, जैसे कि सारी ही मीटिंग्स अटेंड करना इज नॉट इम्पोर्टेंट. For me, it is not important to attend all the family functions or all the social functions. या फिर इतना अर्जेंट, वो अर्जेंट होता है, मतलब आज शाम को फंक्शन है तो मुझे आज ही जाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मे बी इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. And the fourth one is the entertainment, the time wasters. We have already discussed it. I just wanted to classify your task जो अभी हमने लिखे.
उसको क्लासिफाई करना है Q1, Q2, Q3 और Q4 में, ताकि हम बात कर पाए कि कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है. Giving you 2 minutes time to do it. Just list down, you have already listed down your task. उसके सामने Q1, Q2, Q3 और Q4 लिख के वापस आ जाइए. Are we done? Okay. Anybody else? Yes, done. Done. Okay. Where are we falling? मतलब हमारे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज कौन से क्वार्टर में आ रहे हैं? Can somebody share it? Urgent, not urgent and not important वाले कॉलम में. Okay, Q4 में. Then it is very important कि हम लोग उसको अवॉइड करें. Apart from that, anybody else? Activity not important but urgent वाली maybe. Okay. It's very good. Q2. Okay. Q2 is very good. If you are falling into Q2, it is a very good sign, because जब भी हम अपने टाइम को मैनेज करने की बात करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो भी एक्टिविटीज है, जो रूटीन की एक्टिविटीज है, वो Q2 में फॉल करे. द ओनली रीजन इज कि वहां पे हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलता है. दीज आर द एक्टिविटीज विच मे नॉट बी अर्जेंट टुडे, लेकिन अगर उसको आज नहीं किया गया तो वो कल अर्जेंट बन जाएगी. रिमेम्बर द फर्स्ट डे ऑफ आवर बोर्ड क्लास, मतलब द फर्स्ट डे ऑफ आवर बोर्ड क्लासेस के जब भी हम 12th में एडमिट हुए, मतलब एडमिशन हुआ या 11th खत्म होने, एग्जाम्स खत्म होने के बाद जब 12th शुरू किया, सो एट द वेरी फर्स्ट डे वी फेल्ट लाइक अभी तो एग्जाम मार्च में है, अभी तो एग्जाम मार्च में है, ये सोच के हम लोग दिसंबर तक तो निकाल ही देते हैं. एंड अगर दिसंबर में भी अगर पता चल गया, देन स्टिल इट इज इन Q2. बट कई बार ऐसा होता है कि दिसंबर तक लगता है ठीक है ना, अभी एक बार तो कोर्स खत्म कर रहा, अभी तो रिवीजन ही सिर्फ करना बाकी है. एंड देन वी रियलाइज के जब फरवरी आ जाता है, आधा फरवरी खत्म हो जाता है, तब वी रियलाइज के इट बिकम्स अ Q1 एक्टिविटी. अभी इसको अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको फोकस करना ज्यादा जरूरी है. सो प्रोक्रास्टिनेशन इज अ थिंग कि जब हम लोग ज्यादातर सारी चीजें को छोड़ देते हैं, ये कल करनी है या ये बाद में भी हो जाएंगी. So if we want to fall in Q2 quarter, what we need to do is के हमें Q3 और Q4 को पहले अटेंड करना है. सबसे पहले तो हमें Q1 ना आए उसके लिए तैयारी करनी है. Q1 ना आए उसके लिए तैयारी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले से एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं. हम में से कई सारे लोग होंगे जिनकी एक हॉबी रही होंगी कि जिसके बारे में हम हमेशा ऐसा बोलते हैं, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये सीख लेता. इफ आई वुड हैव अ टाइम तो शायद मैं क्रिकेट में अच्छा खेल लेता, मैं आगे भी खेल पाता. मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं डांस सीख लेती या फिर मैं वो भी कर पाती. तो कई बार ऐसी चीजें मतलब जिम के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो कई बार ऐसा होता है कि वी फील कि हमारे पास टाइम नहीं है. बट whenever we say कि हमारे पास टाइम नहीं है, the only thing is we have the time, we just need to manage that. तो अभी उसको कैसे करना है? If we are talking about our personal growth and continuous development, तो हमें Q2 में क्या काम करना है? तो Q2 में काम करने के लिए first of all हमें Q3 और Q4 को मैनेज करना पड़ेगा. Q4 के टास्क जो है, these are the tasks which we can eliminate. उसको हम सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि these are the calls or mails or whatever we are doing, maybe watching a web series, not that important and it is not obviously urgent. I'm not saying that कि हमें वो नहीं करना है, लेकिन we need to manage the time.
अकॉर्डिंगली जब हम Q3 में आते हैं तो फॉर Q3 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारे टास्क को थरली चेक करें, और उसको Q2 में आने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वी नीड टू ऑटोमेट. वी कैन ऑटोमेट फ्यू ऑफ द टास्क. जैसे कि हम लोग में से कई सारे लोगों की आदत होती है टू मेक अ टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग, कि मुझे आज के दिन में ये सारे काम खत्म करने हैं. डू वी हैव दैट हैबिट? Yes, ma'am. यस. सो जब भी हम कहते हैं कि हाँ मुझे ये हैबिट है, लेकिन रोज वो बनाने की जरूरत है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ. जब भी हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, तो वी कैन ऑलवेज यूज अ कैलेंडर. कैलेंडर में क्या होता है, आप कोई भी डेट का कुछ भी एक रिमाइंडर डाल दिया, आपको वो दिन पे पता चल जाएगा. ऑटोमेट और किस चीज में हो सकता है, तो whenever we are saying that paying online bills or reordering something, कुछ लेडीज है यहाँ पे, तो my to-do list is made previous night. Okay, even if you are making it previous night, आप वही टास्क को जब आपको मिला उसी दिन अगर हमने कैलेंडर में डाल दिया कि मुझे ये दिन को ये करना है, that will be a great help for you. ऑटोमेशन की हम बात करते हैं, एक और चीज में ऑटोमेशन हो सकता है पेइंग एंड रिसीविंग ऑनलाइन. हम कई सारी चीज हम ऑनलाइन कर सकते हैं. जब we are wasting our some of the time in grocery shopping, we can order it online. That is the way of I'm telling you to automate in the activities which comes in Q3. So automation is a thing के जो हमें कई सारी चीजों से बचा सकता है. Apart from automation, what else we can do is we can delegate those tasks. जब भी हम बात करते हैं डेलीगेशन की, तो हम में से कई सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि ये टास्क मेरे से अच्छा तो कोई नहीं कर सकता. इफ वी आर इनटू बिजनेस, तो हम लोग ये बिलीव करते हैं अगर मैंने ये टास्क किसी के ऊपर छोड़ दिया तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, अथवा तो आ तो मारे ज करू ऊपर से बीजा कोई नहीं आवड़े, अथवा तो એમ થાય કે મારાથી વધારે સારું કોઈ ન કરી શકે. So all these are myths. I mean, we can always train somebody, or you can teach your task to somebody कि ये काम आपको करना है. The best example of it is कि जब भी कोई नई बहू घर में आती है, सारा काम उसको नहीं दिया जाता है, but धीरे धीरे eventually it happens that she is the one who is handling the whole house, and then वो सारे काम similar manner में हो रहे हैं. So it is okay to delegate tasks. It is not that you can expect, you can trust with somebody with the task you have. ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप नहीं करें और कोई और करे तो चल सकता है, तो delegate those tasks. Apart from them, Q3 में टाइम बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं, जो दूसरों के टास्क है हम कर रहे हैं उसको थोड़ा लिमिट कर सकते हैं. It is okay to say no to somebody अगर वो काम आपके काम में गलत टाइम पे आ रहा है. गलत टाइम के अगर आपको कोई काम बोल रहा है तो इट इज ओके टू से नो, लेकिन उसके लिए आपको वो काम का सिग्निफिकेंस भी देखना पड़ेगा. सो whenever we say no to somebody, it is okay. Apart from that, automation and delegation, we can restrict ourselves कि हमें कई सारे काम अवॉइड भी हो सकते हैं. Q3 is a क्वाड्रेंट के जहां से कई सारी एक्टिविटीज Q4 में जा सकती है, तो जितनी भी एक्टिविटीज जा सकती है उसको वहां पे भेज सकते हैं. Talking from Q4 to Q3 and now coming to the Q2 quarter, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? So we need to manage it well. If we work properly in Q2 quarter, I don't think so कि किसी को ऐसा प्रॉब्लम होगा कि मेरा ये काम रह गया, क्योंकि whenever we say कि हमने प्लान किया हुआ है पूरा दिन, तो it is very good to complete the whole task. क्योंकि हम लोग हमारा टू डू डेज कई बार इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें सारे ही क्वार्टर्स के काम है, और कहीं ना कहीं एक काम ने अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो दूसरा काम रहने ही वाला है. तो अपार्ट फ्रॉम डिवाइडिंग आवर टास्क अकॉर्डिंग टू देयर अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंट, हमें उसको प्रायोरिटाइज भी करना है. सो व्हेनेवर वी से कि मुझे इतना टाइम ये चीज को देना है, तो रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम गिविंग मोर टाइम टू दैट थिंग और
that task. Whenever I say कि मुझे 1 घंटे का मेरा entertainment का time रखना है, तो उसको 1 घंटे ही limit करना is very important. Apart from that, prioritizing is something के जिसको हमें ध्यान में रखना है. उसको कैसे रख सकते हैं ध्यान में? For prioritizing, it is very important कि task की urgency और importance के साथ उसका significance भी देखें. Now, how do we look at the significance? So when we say urgent, the task is urgent. So we can say that the task is urgent because we have how much, I mean, उसको अभी के अभी करना जरूरी है, इसलिए वो urgent है. Why is it important? क्योंकि it matters the most. वो जितना मैटर करता है उसकी consequences इतने मैटर करती है, इसके लिए वो important है. When it comes to significant, तो we need to think about how long it is going to matter. मतलब what is the significance? When we say significance, if I say I wanted to start a new course, तो कितने दिन तक या मेरी लाइफ में कितने घंटे तक या how long it will going to affect my life, according to I need to identify and signify that those tasks. When we say about significance, if we say let us take an example of going to a gym regularly. So when we are identifying that task in Q2 quadrant for going to a gym, तो हमने उसको signify किया है because healthy life is, we all know the meaning of healthy life and the value of healthy life nowadays. So whenever you give significance, it becomes easy for you to prioritize those tasks. कई बार ऐसा होता है कि कई टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसमें सिग्निफिकेंट नहीं होते, फिर भी प्रायोरिटी पे होते हैं, तो उसको अवॉइड करना है. देन वी नीड टू मेक फ्यू थिंग्स कि जो सिग्निफिकेंट है और जो इम्पोर्टेंट है और जो अभी के अभी करना है, शायद उतने अर्जेंट नहीं भी है लेकिन उसको प्रायोरिटी पे लेना है. इट इज माई प्रायोरिटी के मुझे कल से जिम ज्वाइन करना है. इट शुड बी माई प्रायोरिटी के मुझे कल से कोई क्लासेस ज्वाइन करना है. So whenever you give significance and the weightage to the task, it becomes easy for us to give the importance and priority to that task. So with this, I just wanted to share a video with all of you. Audio with all of you. Alexander the Great को कौन नहीं? Yes, it's audible. Alexander the Great को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं अपनी मरण शैया पर अलेक्जेंडर की 3 मांगे थी. कहा जाता है कि अपने आर्मी के जनरल्स को बुलाकर कहा था, मेरी 3 इच्छाएं पूरी करना बस. पहले की दुनिया से सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाकर लेकर आए, यानी कि वही मुझे उठाए यानी कंधा दे, ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि जब मौत आती है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता, घुटने टेक देता है. फिर कहा, जब मेरी अंतिम यात्रा हो, मुझे लेकर जा रहे हूँ, तब मेरी धन दौलत को पूरे रास्ते में बिखेर देना. रास्ता भर जाना चाहिए धन दौलत से, वो भी मेरी. सबको दिखना चाहिए कि यहाँ कमाया हुआ यहीं रह जाएगा धरती पर. तीसरा, अलेक्जेंडर ने कहा था, जब मुझे मरने के बाद ले जाया जाए तो मेरे हाथ बाहर की ओर लटकते हुए रखना, ताकि लोगों को ये भी समझ आए कि धरती पर जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओगे खाली हाथ. सबसे इम्पोर्टेंट खजाना भी खाली हो जाएगा, जो है टाइम, समय. इससे समझ ले कि धरती पर चाहो उतना धन तो पैदा कर पाओगे, लेकिन कितनी भी मेहनत कर लो, टाइम पैदा नहीं कर पाओगे. आज मेरी ओर से मेरे हर दोस्त को आशीर्वाद देना शुरू करती हूँ कि तुझे धन दौलत मिले न मिले, तेरे परिवार और मित्रों के साथ खूब टाइम मिले. और मेरा ये मैसेज हर जिंदा इंसान को फॉरवर्ड कर देना. हर जिंदा इंसान को. जब भी हमने शुरुआत में बात किया था, हमने ये बात किया था, टाइम इज लाइफ. टाइम शुरू होता है हमारे जन्म से और हमारी मौत पे खत्म होता है. So I just want to I just want to say that कि जब भी हम समय के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रायोरिटीज के बारे में बात करते हैं, वो प्रायोरिटीज हम ऐसे डिफाइन करें कि जो हमारे Q2 क्वाड्रेंट की थिंग्स थी, जो टास्क थे, जो एक्टिविटीज थी, हम उसके ऊपर फोकस कर पाए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अपने आप को एक इमोशनल परमिशन देना चाहिए दैट इट इज ओके टू नॉट टू डू समथिंग.
कई सारी बार मुझे अगर मैंने लेटेस्ट वेब सीरीज नहीं देखा है तो इट इज ओके, बट आई हैव स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि एक साल पूरा खत्म हुआ कोरोना के साथ, तो हम लोगों ने ये जाना कि इट इज वेरी मच एंजॉयबल टू बी विद द फैमिली। तो जब भी हम घर पे भी होते हैं तो आर वी स्पेंडिंग आवर टाइम विद आवर फैमिली, दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। व्हेन वी से कि मुझे टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है, तो मे बी ऐसा हो सकता है घर पे होते हैं लेकिन फैमिली के साथ नहीं होते। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यू नो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आई मीन जब भी हम जो चीज कर रहे हैं उसके अंदर प्रेजेंट हो, उसको एंजॉय करे, तो आई गेस ऑल द एक्टिविटीज विल बी completed and our to-do list at the end of our life will be all tick marked. And with this, I close my session, and I just wanted to ask any of you if you want to have any questions or any doubts with that. Actually, I have a question. Please, sir. So time management, normally, how do we change our scheduling जो हम लोग normally करते हैं? जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग से अभी तो हम लोग होस्ट हैं, तो हम तो पहले आ जाते हैं, लेकिन जब होस्ट नहीं होते हैं तो हमें इम्पोर्टेंस नहीं लगती उसकी, उसका लगता है कि ठीक है हो जाएगा। बाई चांस अगर ऐसा होता तो समझ में आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि यार जिसको बुलाया है हम उनकी आदतों के बारे में जज कर लेते हैं। तो हाउ वी विल मैनेज दैट थिंग कि भाई हम उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, या उस जो प्रोकास्टिनेशन है या टाइम से पहले पहुंचने की आदत है वो हम लोग कैसे रखें कि हम लोग आगे फ्यूचर में उस पर बिफोर पहुंच पाए। आई मीन टू आंसर टू योर क्वेश्चंस, हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी चलता है, तो जनरली ऐसा ही हमारे कैंडिडेट्स के साथ भी होता है कि व्हेनेवर वी हैव शेड्यूल एन इंटरव्यू, तो वो हम कितना भी बोले कि सर टाइम पे पहुंच जाना, लेकिन वो टाइम पे कहीं ना कहीं 10 मिनट के लिए भी अगर लेट हो गया तो क्लाइंट विल से कि नहीं, ये बंदा अगर इंटरव्यू में नहीं आ सकता तो इसको हम क्या जॉब देंगे। द रीजन मे बी जेन्युइन, बिकॉज कई सारी बार प्लांट बहुत आउटस्कर्ट्स में होते हैं जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड ऑन अ मैप एंड ऑल। तो व्हाट वी डू इज कि हम लोग जब भी किसी चीज के लिए टाइम रखते हैं ना, तो व्हेनेवर वी गिव शेड्यूल टू आवर क्लाइंट, हम लोग हाफ एन आवर पहले का शेड्यूल खुद के लिए रखते हैं, एंड दैट इज द थिंग वी शेयर विद आवर कैंडिडेट्स ऑल्सो। तो व्हेनेवर वी से कि हम खुद को पहले पहुंचने से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ खुद को कहीं ज्यादा टाइम पहले से पहुंचने से रिस्ट्रिक्ट ऑफकोर्स कर सकते हैं। इफ वी आर अ होस्ट, वी आर शेड्यूलिंग अ मीटिंग, हमने खुद के लिए रिमाइंडर रख दिया है, if the meeting is at 1 o'clock, we can put a reminder for 12:40 or maybe 12:45. जरूरत नहीं है कि हम 12:30 बजे से उसके लिए बैठ जाए। दैट इज द वे वी कैन रिड्यूस आवर वेस्ट ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम देम वेटिंग इज समथिंग के जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ऐसा फील होता है कि मेरा टाइम जा रहा है। मे बी इट मे बी फॉर अ पर्सन के जहाँ पे हमें उससे मीटिंग के लिए मिलना है, कहीं कोई भी जगह पे अगर वेटिंग करना पड़े तो हमें लगता है कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। फॉर दिस आई जस्ट वांटेड टू शेयर एन एक्सपीरियंस कि जब भी वेटिंग करते हैं तो वी कैन सॉल्व सम ऑफ द टास्क। वी ऑलवेज हैव आवर मोबाइल विद अस। वेटिंग करते हुए वी कैन चेक आवर मेल्स, we can check our inboxes at that point of time. Being alive all the time on every social media app is not preferable. तो वो टाइम ऐसा है कि जहाँ पे हम अपडेट्स ले सकते हैं। We were talking about automation, तो I will not say कि social media use नहीं करना है, because that is the most important thing currently, क्योंकि कई सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, बिजनेस भी ऑनलाइन हो रहा है। whoever are in training field और teaching field, उनको खुद को भी प्रमोट करने के लिए भी सोशल मीडिया यूज करना पड़ रहा है। सो आई विल नॉट से कि सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, लेकिन उसको ऑप्टिमम तरीके से कैसे यूज करना है। जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को अगर लिंक करा हुआ है तो वॉट एवर यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम विल डायरेक्टली गो टू फेसबुक। उसके लिए मुझे दोनों चीजें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
we can link our all the accounts with it. There are applications which are available to schedule the postings. तो अगर जब हम फ्री बैठे हैं तो वो वी कैन शेड्यूल दोज पोस्टिंग, तो मुझे फिर उस टाइम पे फिर से करने की जरूरत नहीं है. सो दीज आर द स्मॉल वेज के जहाँ पे हम ऑटोमेट करके अपना टाइम बचा सकते हैं, एंड वी कैन रिड्यूस द दैट वेटिंग टाइम उसमें दूसरा काम करके. सो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस आवर एंजाइटी के यार अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ और कोई नहीं आया. सो दैट इज द मे बी बेस्ट यूज ऑफ टाइम फॉर दैट पीरियड. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर एनीवन. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो दे आर फ्री टू आस्क. रेज योर हैंड, आई विल गिव यू टर्न बाय टर्न. यस स्नेहा मैम, यस. आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वर्क लाइफ बैलेंस का जो है आपने टॉपिक अच्छा लिया. उसमें अगर कभी ऐसा हो कि काफी बार वर्क का प्रेशर थोड़ा ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से हमें शायद से, अभी तो हम घर पे काम कर रहे हैं तो आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट कि घर पे भी अगर आप बैठे तो पूरा दिन कभी कभी आपको काम करना जरूरी पड़ता है. तो फिर उसमें वर्क और लाइफ का बैलेंस कैसे रखा जाए, जो शायद से अभी जरूरी भी है हमारे लिए. ओके. अ फ्यू टिप्स. जब भी हम बात करते हैं घर से काम कर रहे हैं, तो वी ऑल नो और घर के टाइमिंग्स का कौन सी टाइम पे घर में क्या होता है. ट्राई एंड गेट दो स्लॉट्स फ्री एटलीस्ट. हम लोग खाने का टाइम है वो अगर स्लॉट फ्री कर दे, whether if we are working for 6 or 7 or 8 in the night, it is okay, nobody is going to disturb us because all they also know. अभी घर वाले भी ये समझते हैं कि अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि उसको काम है, तो nobody comes to your door and disturb you. But what best we can do is कि ऐसा सारे जो टाइम है when everybody is awake, there are some tasks which we can do in night. जब सब सो रहे हैं तब हम वो कर सकते हैं. So we can delegate those hours to our time. ऐसा हो सकता है कि कई सारी चीजें, एज आई नो यू आर इन द क्लासेस राइट, मतलब टीचिंग फील्ड में, तो you can do your assignments, or whether you are checking for some for student supplementaries or anything, we all can do that later. मतलब जैसे मेरा काम है तो I can make the PPT in night, no problems. But whenever we have some gathering kind of a thing, जैसे कि नाश्ते का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, तो we can manage. And the second most important thing is we don't communicate. अगर हमें लेट होने वाला है तो कई सारी बार हम बोलना ही भूल जाते हैं. सो जब भी हम बात करते हैं कि हमें मैनेज करना पड़ता है, तो कंप्लेन ये नहीं आती कि टाइम नहीं देते, लेकिन टाइम पे टाइम नहीं देते. क्योंकि कंप्लेन ये हो जाती है कि अगर पहले बोला होता तो मैं वो टाइम पे और कोई काम कर लेता या कर लेती. सो इफ आई से आज 1 से 2 बजे का सेशन था, तो एडवांस में अगर कम्युनिकेट करके रखा है कि 2 बजे तक मेरा चलने वाला है, तो दे विल ऑल्सो प्रिपेयर एवरीथिंग कि अगर लंच करना है तो 1 बजे से पहले खत्म हो जाए या फिर 2 बजे के बाद, then they will not come. But if you have not communicated to them कि मुझे 1 से 2 बजे का कोई सेशन है, तो ऐसा होगा फिर 1:30 बजे वो आएंगे, आप मना करोगे, and then they'll get irritated कि यार घर पे फिर भी टाइम नहीं देते. So that is the key, I guess. जब work from home कर रहे हैं तो communicate your schedule also to your family, so they also get to know कि कौन से टाइम पे आपके पास आ सकते हैं, कौन से टाइम पे आपके पास नहीं आ सकते. थैंक यू मैम. Thank you. रहमान जी, रहमान एक्चुअली ये बहुत ज्यादा वो है कि लाल माइक और ब्लू माइक को जो होता है ना टेक्निकली, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या आ गया है. हम लोग गेम खेलते थे एक समय पहले की बात है, टाइम मैनेजमेंट चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय पहले की बात है कि हम लोग वेट करते थे संडे का, जहाँ पे मोगली, महाभारत और डोनाल्ड डक, ये तीनों सीरीज एक साथ आती थी और हम लोग बैठ के वेट करते थे. और आज यूट्यूब खोलो, हर चीज आपको मिल जाती है. तो टाइम विल चेंज. और मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया हमारे साथ. थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक प्रीवियस टाइम हमें दिया. जेसीआई सूरत सिटीजन थैंक करती है, उनके बिहाफ पे मैं कर रहा हूँ आपको थैंक्स. एंड थैंक यू सो मच कि आपने आज के दिन बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल होने के बावजूद आपने हमें ये टाइम दिया.
और इस टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम बहुत अच्छा एक सेशन चलाएंगे आगे, उसमें आपको याद करेंगे, जो हम टोटली प्रैक्टिकल एंड डिटेल बेसिस पे लेकर आएंगे। तो उसमें भी हम आपको याद करेंगे डेफिनेटली। आशीष पारेख सर अवेलेबल हैं, जो बहुत ही हमारे मेंटोर हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रीवियसली लाइक योर टाइम निकाला और अटेंड किया। निर्मल पारेख सर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। निर्मल पारेख सर हमारे बहुत अच्छे बिजनेस मेंटोर हैं और फाइनली एक्चुअली अब मुझे लग रहा है कि हमारा जो ट्रेनिंग रखा हुआ था वो सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे, कि हमारे जो मेंटोर हैं वो आ रहे हैं, हमें चेक कर रहे हैं कि हम किस तरीके से खुद को और जेसीआई सूरत सिटीजन को जिसे इंडिया के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने ये प्रीवियसली टाइम, जो खाने का टाइम था उसमें टाइम निकाल के आपने दिया। एंड आई लव टू कि आने वाली जो ट्रेनिंग्स है उसमें भी अभी और सब लोग को ज्वाइन करेंगे। एंड एक छोटा सा मैंने ग्रुप बनाया है फॉर स्पेशली ट्रेनर्स के लिए, जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपडेट आएंगी, ट्रेनिंग की अपडेट्स आएंगी जेसीआई के थ्रू, जो भी ट्रेनिंग होने वाली है। तो उसमें मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसने भी नहीं किया हो। एंड जो भी अपडेट्स हैं एंड जो भी आपके सजेशंस हैं, आप कुछ चाहते हैं पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर, तो आप वहां पे मुझे बता सकते हैं, तो जेसीआई उसके लिए ढूंढेंगी। एंड जो नॉन मेंबर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जेसीआई ज्वाइन करिए। अगर इतनी अच्छी ट्रेनिंग ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन तो धमाकेदार ट्रेनिंग होती है इसकी। एंड लाइफ विल चेंज इफ यू आर रेडी टू लर्न। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो जिंदगी बदलने को तैयार है। तो थैंक यू सो मच सर। कुछ कहना चाहते हैं निर्मल सर? प्लीज अगर आप कुछ कहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यार मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं आपकी बातें सुन के मैं खुद इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। यू आर अ वंडरफुल स्पीकर, बहुत अच्छे से आपने बयां किया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर बिकॉज एक तो ये चैप्टर को अच्छे से मैं जानता हूँ, इट बिलोंग्स टू माय ओन जोन, और आप बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं। और साथ साथ में स्नेहा ऑल्सो इज समबडी आई नो पर्सनली, मेरी मेंटरिंग करता हूँ, मेरी ही कंपनी में है। सो शी इज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर इन द कंपनी। सो आई ऑल्सो वांटेड टू सी कि कैसे कर रही है। एंड आई मस्ट से कि जैसे मैंने थम्स अप का एक साइन दिया था व्हेन शी वाज रिप्लाइंग, बहुत अच्छा रिप्लाई था, इट वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड आई एम वेरी ग्लैड that she has done extremely well. I also take a lot of pride, when any trainer from Zone 8 does wonderful training program, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। And I think that's the kind of job that I'm looking at now. हमारा समय, जैसे आपने कहा समय बदल रहा है, हमारा समय भी अभी थोड़े से धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और the time must belong to the younger generation of trainers. People like Sneha, you are giving excellent opportunities for them to perform. So I'm also happy about it. And I think this is the role that the senior trainers must have now, that we must groom the new budding trainers and bring them to a certain level. Happy to be with your chapter. Happy to be here. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये ट्रेनिंग सेशन बहुत पसंद आया हो। और अगला सेशन जो हमारा है वो है 3 बजे। 3 बजे जो हमारा सेशन है वो है हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंडा। बिजनेस में कैसे हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं, बाय सिद्धार्थ भटनागर, जो जेसीआई के नेशनल ट्रेनर आधे बन चुके हैं, आधे बनने जा रहे हैं। एंड ही हैज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस अबाउट द बिजनेस। So hope you all are attending that session and will enjoy। and इसकी एक समरी हम लोग बनाएंगे। जो आज की जो ट्रेनिंग्स है इसकी एक समरी मैं बनाऊंगा और मैं बना के इसे डालूंगा हमारे फेसबुक पेज पर, जो सूरत सिटीजन का फेसबुक पेज है, कि व्हाट वी लर्न इन दिस 6 ट्रेनिंग्स, डिफरेंट ट्रेनिंग। आशीष सर आप आ गए, धन्यवाद। प्लीज आपके 2 वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आया मैं हूँ, आया नहीं हूँ। हमें नजर अभी आए हाल। वो कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर 2 ऐसे दिग्गजों का आशीर्वाद होता है, जैसे निर्मल सर है और आशीष सर है, तो
उनका नाम देख के हम एनर्जाइज हो जाते हैं, लेकिन जब शक्ल दिखती है ना तो हमारी जिंदगी में उजाला हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये सब तू कहाँ से सीखा है, मुझे ये बता पहले। सर सीखना शुरू किया है, जिंदगी सीखने के लिए बहुत कम है, सीखना शुरू किया है, बस अब आप लोगों के साथ रह के इम्प्लीमेंट करने का मौका है। सर निर्मल सर हमारे गुरु है, इस सर को देखने आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और नेहा जी बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा सेशन था। नेहा थैंक जी यू सर। आजकल गंगा थोड़ी सी उल्टी बहती है, गुरु शिष्य का दर्शन करते रहते हैं। अब देखो ये मानने वाली बात नहीं है मगर हकीकत है। सो आई एम इक्वली हैप्पी टू सी आशीष हियर एंड Aiman, I will probably join once again for Siddharth's session because उसका जो सेशन है that is a part of official assignments of entry. तो मुझे थोड़ी सी क्रिटिकल नजरों से भी उसको देखना है। तो मैं उसमें आ जाऊंगा। मैं आपको अभी लिंक भेज देता हूँ सर, शायद मेरे पास नहीं, वो सिद्धार्थ ने भेज दी है, ये सेंट इट टू। ग्रेट, ओके, थैंक यू। ओके सर, या बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो नाउ वी आर